answer. Lovejeet. Okay. Yes. Now you can share your PPT. सर स्क्रीन शो हो रही है? नहीं बेटा, मेरे पास नहीं हो रही अभी तक. सर वेट अ सेकंड. ओके ओके, डोंट वरी बेटा. सर अब हो गई? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं हो रही है. और किसी को? हाँ, अब कुछ लग रहा है. हाँ, शेयर करो बेटा, कंटेंट अपना शेयर करो. सर हो गई शो? हाँ बेटा, बिल्कुल. इसको स्लाइड शो में शुरू कर दो और गुड प्रोसीड मॉर्निंग करो फिर बेटा एवरीवन. अपना. Good morning everyone. I am Lavjeet Kaur from section 8 today. I am going to discuss about bioinorganic chemistry. So here are some topics. Sir wait a second. Don't worry. Take your time बेटा. आपका स्क्रीन शेयर कर हो गई है आपकी. आपको जस्ट आई थिंक प्रोसीड करना है. आप मेरे ख्याल से F5 बटन, F5 से भी शायद आप लोग कर देते होगे. स्लाइड से शुरू हो जाता है फिर शायद, आई थिंक सो. आप लोग विंडो में जो करते हो. So here are some essential, here are some topics on which we will discuss later. First of all, there is introduction, essential elements, then metallophorphins, iron porphins, structure of myoglobin and hemoglobin, then there is Bohr effect. So first of all, there is bioinorganic chemistry is the branch of science which brings organic chemistry into life process. By recognizing the fundamental importance of life dependence on metal ions, in a simple way, we can say that the study of roles of metal ions in biology. Before discussing the next slide, we all know that in our periodic table there is 118 elements, but all elements are not present in our body. Some selected elements are present in our body which are very due to proportion. Trace elements are those are required percentage below 0.1. So there are sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, cobalt, copper and zinc. So there are some important role plays by metals in human body. Here is the tabular form. First of all, there is regulatory action which are played by sodium and potassium. So it plays sodium potassium channel and pump. So here is the question arise, what is sodium potassium channel and pump? So transmembrane protein, it is used to transport sodium and potassium in and out of the cell. It is happened due to the presence of ATP molecules. So it present functions like kidney function, maintain blood pressure, control heart contraction. Second is structural role. Calcium and magnesium play a vital role in providing strength and rigidity to in bones and teeth.
Third one is electron transport agents, Fe+2 and Fe3. Cytochrome redox intermediates membrane-bound protein that contain heme group and carry out electron transport in oxidative phosphorylation. Fourth one is metalloenzymes, that is zinc. Carbonic anhydrase, that is the enzyme present in our lungs which converts CO2 to HCO3 negative. Fifth one is oxygen carriers and storage, iron and copper, which are present in hemoglobin, myoglobin, hemocyanin. Sixth one is metallocoenzymes, cobalt, that is present in vitamin B12. So there is now metallophorphines. So in which we will first read about structure of phorphine ligands. So phorphine ligands are derivative of for phorphine rings. So phorphine rings are microcyclic tetradentate ligand made up of 4 pyrrole rings linked together through methane bridges. So you can see the methane bridges, 4 pyrrole rings here. So these tetradentate ligand has a bond system with 4 nitrogen sites. So it has present 11 pi bond. As there is 2 hydrogen atom, I mean 2 protons, so it can donate their 2 protons and become dianionic. And as there is 2 nitrogen which have lone pair on it, and it can accept 2 proton and become dianion, dication. So मेटलोफॉर्फिन्स द कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल, हमने पीछे इस हमने फॉर्फिन रिंग को पढ़ा है, अगर हम उसके साथ मेटल को कोऑर्डिनेट करवा दें तो इट कैन बिहेव एज मेटलोफॉर्फिन्स. सो मेटल्स जो होते हैं वो फॉर्फिन रिंग के मिडल में लाई करते हैं. एज यू कैन सी डाई पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये Mg+2 भी हो सकता है, Fe+2 भी हो सकता है और Nickel+2 भी हो सकता है. सो आयरन फॉर्फिन इन हीम, ये एक एग्जांपल है मेटलोफॉर्फिन्स का. सो सबसे पहले हमने फॉर्फिन्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने फॉर्फिन रिंग्स के साथ कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करवा दिए. देन मूव करते हैं, देन हमने मेटल को कोऑर्डिनेट करवाया है. अगर हम आयरन को इसके साथ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं तो इट बिकम हीम ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन आवर हीमोग्लोबिन. सो हीम ग्रुप को हम दूसरा ये भी कह सकते हैं आयरन टू फॉर्फिन. So ये जो only one isomer protoporphyrin 9 is found in living system. Porphins are planar and aromatic. So it is present in myoglobin and hemoglobin both. So here are some basic functions of hemoglobin and myoglobin. Hemoglobin and myoglobin carry and bind. Hemoglobin is found in blood and myoglobin is found in muscle tissue. They both metalloprotein containing iron at the center of heme group. Hb can bind 4 molecules of oxygen, but myoglobin can bind only 1 molecule of O2, and myoglobin has much higher affinity for binding oxygen at low pressure as compared to hemoglobin. So hemoglobin is pH sensitive while myoglobin is not. Hemoglobin picks up O2 in the lungs and transport it to the rest of the body. Myoglobin accepts oxygen from the hemoglobin in the muscles and store it until needed for energetic process. Deoxygenated hemoglobin uses some of its amino acids to fix up CO2 and then transport CO2 back to the lungs. So here is the structure of myoglobin. So myoglobin, as you know that myoglobin has only 1 molecule of heme. So it has only 1 iron group. So it can only contain 1 or 2 molecule can combine. So it is the similar subunit to hemoglobin, and this is the deoxygenated form of myoglobin. So its molecular weight is 17,000 approx, and it has 8 alpha helix and 153 amino acid units and single unit pentacoordinate deoxy. It has proximal histidine and dihistal histidine. You can see the red heme group here, that is only one group is present in myoglobin. So now there is the structure of hemoglobin. So as you know that it is found in red blood cells and known as erythrocyte. Due to the presence of hemoglobin, the color of blood is red.
So it transport oxygen. So as you can see that there is a grayish 4 units. So it is the 4 unit that is present in hemoglobin known as heme group, and each heme group is surrounded by a protein which is known as globin protein. Further, the globin protein is divided into 2 parts, alpha type and beta type, and both the alpha and beta consist of one polar and one non-polar bond. Is Polar bond is present in outside and non-polar bond is present in inward. So it has spiral and helix structure. Alpha, it has 141 amino acid, beta 146 amino acids. Then there is 3 major types of hemoglobin: HbA, which is adult, HbF, that is fetal, and then HbAc, which is sickle. So next is the role of hemoglobin and myoglobin. सो सबसे पहले आपको ये सब पता है कि जो एक्सलेशन है हमारे पास वो रिवर्स प्रोसेस है इनहेलेशन की. सबसे पहले हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से लंग्स में, और ऑक्सीजन जो है हाई प्रेशर पे बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ 100 टोर के नियर अबाउट. सो व्हेन इट मूव्स टू रेस्पिरेटरी टिश्यूज, सो वहाँ पार्शियल प्रेशर, जो हमारे पास प्रेशर है वो लो होता जाता है. तो इस वजह से जो हीमोग्लोबिन है हमारी जो है वो डिसोसिएट हो जाती है और कहाँ चली जाती है, हमारी मसल्स में, जहाँ की मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके पास हमने बेसिक फंक्शन में पढ़ा कि ग्रेटर एफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे लोअर प्रेशर पे भी बाइंड कर लेता है. तो ये जो है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ऑक्सीजन के साथ फिर जो है वो टिश्यूज को प्रोवाइड करवाएगा फर्दर के लिए. तो हमें पता है कि जहां हमारा प्रेशर लो है वहां CO2 की प्रेजेंस होती है मसल में, तो वो वाटर के साथ कंबाइन करेगी. फर्दर जो है जो CO2 है वो कन्वर्ट करेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H2CO3 विच इज कार्बोनेट आयंस. तो ये जो हमारे पास आयन बनेगा वो अनस्टेबल होगा, तो ये फर्दर डिसोसिएट होगी HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में. तो जो हमारे H पॉजिटिव है वो आके जो वैकेंट स्पेस है जहां ऑक्सीजन ने लीव किया था, वो हाइड्रोजन जो है वो उसकी स्पेस एक्वायर कर लेंगे और हीमोग्लोबिन के साथ जो है कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. और फर्दर जो है हमारे पास जो HCO3 है वो लंग्स तक जाएगा, जहां पे फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CO2 में. तो जो है एक्सेल आउट हो जाएगा. देन वी हैव द ऑक्सीमायोग्लोबिन एंड first we have oxyhemoglobin. You can see the structure here. This is the form of oxyhemoglobin. So डीऑक्सी में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो ये आयरन ग्रुप जो हमारे एग्जैक्ट सेंटर पे है वो यहाँ लाई करता है 70 PM में अबव द प्लेन. तो जब ये ऑक्सीजन के साथ, ये जो 5th साइड है वो कोऑर्डिनेट होती है प्रोटीन के साथ, और जो 6th साइड है वो फर्दर कोऑर्डिनेट होती है ऑक्सीजन के साथ इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो हम ये बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है आयरन के साथ तो वो उसको एग्जैक्ट सेंटर में ले आती है, और ये R स्टेट होती है इसमें. तो आयरन के 5 बॉन्ड होते हैं, तो 6 साइड तो वैकेंट होती है जो ऑक्सीजन ने एक्वायर कर ली. सो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास वो लो स्पिन होता है ड्यू टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, और इट हैज T2G6 or Eg level 0, so that we can say that it has octahedral geometry. So in deoxyhemoglobin, so as it present below the plane, so we can say that it has high spin. इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे पास T2G4 और Eg2. Due to this it has square planar. Then we have deoxymyoglobin and deoxyhemoglobin. So as myoglobin has only one unit of heme group, so इसके साथ एक ही ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा. Here is the protein chain, this is the protein chain. So जो 5th पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, deoxymyoglobin iron plus just lie the outside the plane. So it combine, when it combined with oxygen, it ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है.
तो जो बेसिक्स ऑफ ऑक्सीजनेशन रिमेन सेम फॉर हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन, but there are some difference in the way of 4 unit get oxygenated. So we can say that in deoxymyoglobin there is a paramagnetic structure and it has T2G4 Eg2 and have a high spin, and in oxymyoglobin it has a diamagnetic in nature and having geometry of square planar and have low spin and T2G5 and Eg0. Then we have the most important Bohr effect. So what is it? It is given by Christian Bohr, the father of Niels Bohr, discovered this effect. An increase in concentration of protons and or carbon dioxide will reduce the oxygen affinity of hemoglobin. So it is pH dependent. So अगर हम जरा सा भी चेंज करते हैं pH में, it leads to the change the amount of oxygen transported in hemoglobin. So the chemical basis of Bohr effect is due to the formation of two salt bridge. यहाँ पे salt bridge की formation होती है due to the presence of histidine and aspartate. तो ये क्या करते हैं, histidine having positive charge and aspartate having negative charge, ये bond बनाएंगे और जो वो bond बनेगा वो salt bridge बोला जाएगा उस सबको. तो हमने बोला कि जो बोहर इफेक्ट है वो pH डिपेंडेंट है, तो अगर स्लाइटली भी pH में चेंज होगा तो हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, मतलब चेंज हो जाएगी. तो हम अगर बात करें बिलो द pH ऑफ 6, जो इमिजॉइडल रिंग है हिस्टाडाइन है वो मोस्टली प्रोटोनेटेड हो जाएगी, दस फेवरिंग क्या बनाएगी, सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन. So next है hemoglobin and allosteric protein. Allosteric means the other side. So इसमें क्या होता है, हमारे पास an allosteric protein does not have, इसके पास कोई fixed properties नहीं होती हैं. Its functional characteristics are regulated by specific molecule present in its environment की वजह से changes होते हैं. So hemoglobin allosteric है, protein है, while जो myoglobin है वो नहीं है. Hemoglobin is the living system, is regulated by oxygen partial pressure. So it is due to the H positive concentration and O2 partial pressure and 2,3 BPG. 2,3 BPG, 2,3 biophosphoglycerate. Then first we have oxygen molecules. So when the pressure decreases, अगर हमें पता है कि जब हम लंग्स से मसल्स की तरफ जाते हैं तो हमारा जो है पार्शियल प्रेशर क्या है, लो हो जाता है. तो वो पार्शियल प्रेशर लो होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो क्या अनलोड हो जाती है हीमोग्लोबिन से और कहाँ मूव कर जाती है, मसल्स में. तो हमारी जो है ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो कम हो रही है, और मायोग्लोबिन के पास एफिनिटी होती है कि वो लो प्रेशर पे भी कंबाइन कर जाए. तो मायोग्लोबिन के पास जो है हमारे स्ट्रक्चर होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कर्व कैसा देता है वो हाइपरबोलिक, और हीमोग्लोबिन कैसा कर्व देता है, सिग्मोइडल. सिग्मोइडल का मतलब यहाँ ये है कि ये एक तरह का ऐसा कर्व है जो इंडिकेट करता है कि हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को टिश्यूज की तरफ. अगर हम कहें कि हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर हम हाइपरबोलिक की तरह अगर हो जाए, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे. हीमोग्लोबिन यहाँ पे 95% सैचुरेटेड होती है लंग्स में, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है 100 टोर के नियर अबाउट. बट अगर हम बात करें कि मसल्स में, तो वहां सिर्फ 55% जो है वो सैचुरेटेड रह जाता है मसल्स के साथ, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है कम हो जाता है. सो इट कांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन लो प्रेशर. नेक्स्ट मूविंग टू क्या इफेक्ट देता है बोहर H पॉजिटिव आयन हीमोग्लोबिन के ऊपर. तो जब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो अनलोड होने लग जाती है. हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं हीम के, तो 4 आयरन ग्रुप मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है अगर आपके पास आपकी फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर अनलोड इजीली हो जाती है तो नेक्स्ट 4 बहुत फास्टली मींस रैपिडली जो है अनलोड हो जाएंगी. तो यही रीजन है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे जो है ऑक्सीजन अनलोडिंग बढ़ जाती है, और जहां ऑक्सीजन अनलोडिंग बढ़ती है
वहाँ जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो उसकी जगह जो है एक्वायर कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को जो है स्टेबल कर देते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड क्या करता है, पीएच को कम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है और जिससे कई बार एक्सरसाइज करने पे हमें सफोकेशन भी फील होती है और कई बार सांस भी फूल जाती है। नेक्स्ट मूविंग टू 2,3 बीपीजी। 2,3 बीपीजी हमारे पास सबसे पहले मायोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, HbF, ये MB, ये हीमोग्लोबिन HB है। जो ये ब्लू लाइन है ये इंडिकेट करिए नॉर्मल 2,3 बीपीजी है हमारे पास। और 2,3 बीपीजी बेसिकली एक स्मॉल यूनिट है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। और हमने हीमोग्लोबिन में दो स्टेट पढ़ी थी, R स्टेट एंड T स्टेट। तो ये T स्टेट को एक्वायर करता है, T स्टेट में डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को ये फेवरेबल करता है। तो हमें हीमोग्लोबिन में पढ़ा था हमारे पास दो तरह की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों अपोजिट साइड पे होती है, मतलब मीन्स अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, ये एक तरह की पॉकेट बना लेते हैं बीच में। तो वो पॉकेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है कि पॉकेट, उसके अंदर होता है 2,3 बीपीजी जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर ये इसके अंदर रिजाइड रहेगा तो ये क्या फेवर करेगा, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म को। तो इससे क्या होगा, पीएच कम होगा और ऑक्सीजन की जो है एफिनिटी कम होगी। तो अगर हम बात करें, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन वहां कम होती है तो हाइपोक्सिया, एनीमिया या पल्मोनरी जो डिसीजेज है, तो उसमें क्या करता है 2,3 बीपीजी इंक्रीज करा देता है जो है ऑक्सीजन अनलोडिंग को, जिससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है 2,3 बीपीजी की ज्यादा हो जाती है। 2,3 बीपीजी की अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, जिससे जो है हमें सफोकेशन लीड होगी। द लास्ट वन, देयर इज द नेचर ऑफ हीम, कि ऑक्सीजन कैसे बाइंड कर दिया हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से। सो द डीऑक्सीजनेटेड मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू आयरन, ये इन हीम ग्रुप इन फॉलोइंग 3 पॉसिबल वेज। तो फर्स्ट इज लीनियर अरेंजमेंट, then is angular or bent arrangement, then there is sideways symmetrical interaction. So because the size and the complexity of the both hemoglobin and myoglobin, it has not been easy to establish electronic or structural nature of bonding O2 to heme. The X-rays studies of myoglobin and hemoglobin have shown that O2 binds to heme group in an end-on band geometry with FeOO bond angle of 130 degree. सो हमारे पास एक क्वेश्चन भी था यहाँ, क्यों सीओ जो है वो उसके पास हाई एफिनिटी होती है, मतलब कि वो हीमोग्लोबिन से देन ऑक्सीजन। तो यहाँ एक रीजन है कि सीओ जो है हीमोग्लोबिन से जब बाइंड करता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज्यादा होती है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देता है और क्या बना देता है हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो जो कि सफोकेशन लीड करता है। सफोकेशन लीड करने की वजह से वो क्या बना देता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से पॉइजनिंग का वो हो जाता है और O2 सेल क्या हो जाते हैं, टेक्स अवे। थैंक यू thank you everyone for being a patient listener, and my special thanks to Sandeep sir for giving me such an opportunity. Thank you very much beta. माइक अनम्यूट करो 1 मिनट के लिए बेटा अपना जरा, क्योंकि मेरी बात को मैं बोल रहा हूँ ना वहां से दोबारा मेरे को आ रही है। अच्छा बेटा लवजीत, ये टॉपिक जनरली नॉन मेडिकल वाले बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तुम्हारा कैसे है? तुमने पढ़ा हुआ है पहले ही ज्यादा है, कैसे क्या है? सर पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छे से तुमने डिफाइन किया इसको, और लगता भी है प्रेजेंटेशन देख के इस पे तुमने पूरा मेहनत लगाई। मेहनत तो खैर सारे स्टूडेंट्स ने लगाई हुई है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जनरली नॉन मेडिकल के स्टूडेंट के ऊपर से जाती है मोस्टली चीजें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डील नहीं करता। अगर पढ़ा होता तो अलग चीज होती है। एनी हाउ कोई स्टूडेंट अगर कुछ क्वेरी है किसी की इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं बेटा लवजीत से। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसने इस चीज को। डेफिनेटली इसको देख के मुझे लग रहा है कि जब अगर हम हमारे यूनिट जब हम पढ़ाने का नंबर आएगा, हम लोग डिस्कस करने आएंगे,
तो मुझे लगता है कि इट इज बेटर कि लवजीत को इनवाइट करेंगे हम इस लेक्चर, इस टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। आई थिंक सो। किसी की कुछ क्वेरी है बेटा? किसी की नहीं है? चलिए, एनी हाउ, अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा लवजीत। Welcome, sir. ओके बेटा, थैंक यू। देखिए बेटा, अब जनरली क्या है कि नेक्स्ट वीक जो प्रेजेंट करेंगे तो प्लीज आप, जैसे मैंने बताया था, आप उसकी डिटेल्स मेरे पास भेज देना। तो उसी अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि किस किस की प्रेजेंटेशन करवानी है। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जितने भी